Hello dear 9th class students. Now we are going to get start the reading of the text in Hindi as well as in English of the first chapter of your Behavior book. The name of the chapter is The Fun They Had, and this chapter has been written by Isaac Asimov. Okay, so just open your text to read this and to know about the explanation in Hindi. Okay, now we are going to start the reading of the chapter. Just come to page number 5, open the chapter, and before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. Now, this is the diagram of schools of future. By this diagram you can have idea of the future schools. Okay students, तो ये कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हो उसे भविष्य में फ्यूचर में सेट किया गया है, और उस समय किताबें और स्कूल शायद ऐसे नहीं होंगे इन योर फ्यूचर. ओके, तो बच्चे उस समय हाउ दे विल स्टडी ये आप देखने जा रहे हैं, और इसके कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हो, एंड यू कैन हैव आइडिया ऑफ योर फ्यूचर स्कूल बाय दिस पिक्चर. ओके, इन पेयर्स डिस्कस 3 that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Have you ever read words on a television or a computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? Okay, तो अब बताइए कि पेयर्स बनाइए और डिस्कस करिए 3 थिंग्स को जो आपको आपके स्कूल के बारे में बेस्ट लगती है. हाँ, नेक्स्ट 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल जो आपको चेंज करनी है, उनके बारे में लिखना है आपको. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर टू स्टार्ट अप. ओके, तो नेक्स्ट इज, क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स देखे हैं? आप इमेजिन कर सकते हो जब बुक्स कंप्यूटर पर होंगी तो देयर विल बी नो बुक ऑन प्रिंटेड पेपर. प्रिंटेड पेपर पर कोई भी बुक नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स. हाँ, तो क्या आपको इस तरह की बुक्स अच्छी लगेंगी? कैन यू टेल मी? Now, Margie. As just in the introduction I have told you that Margie is a girl of, what is the age of Margie? 11 years. And Tommy is the boy of 13 years. So now we are going to start the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when she was a little boy, he was a little boy, his grandfather. Now I am going to explain you these 3-4 lines in Hindi. तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने उस पेज पर लिखा है, डायरी के पेज पर 17 मई 2157, और उसने लिखा है कि आज टॉमी को रियल बुक मिली. ये बहुत ओल्ड बुक है, और मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, उसके ग्रैंडफादर,
Okay, now turn the page. तो ग्रैंडफादर ने क्या बताया, दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly. Which type of the pages? Yellow and crinkly. Pay attention to this. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Ghee. For whom ghee has been used? Ghee is the name for Margie. Ghee is the short name of Margie, said Tommy. What a waste! When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11. How was what was the age of Margie? She was 11. She had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. What was the age of Tommy? 13. Okay. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. Was it about school? Margie was scornful. Scornful, it means showing you think something is worthless. I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. In which subject? Test after test in geography. And she had been doing words and words. How she was doing? Words and words. Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. For whom she was sent? For the county inspector. Pay attention to these words, okay? He was a round little man. How was the county inspector, dear students? Was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped it would not now it would not know how to put it together again, but he knew how, all right. And black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. What was not so bad? The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Now, till here, up to here, I am going to explain in Hindi. तो ग्रैंडफादर ने क्या बताया था स्टूडेंट्स? व्हाट वाज सेड बाय द ग्रैंडफादर कि एक समय ऐसा था जब कहानियाँ कागज़ पर छपी हुई होती थी. उन्होंने पेजेस टर्न किए, पलटे. पेजेस टर्न माने पलटना, जो कैसे थे? येलो एंड क्रिंकली, येलो पड़ चुके थे और वो पेज मुड़ने पर टूट भी रहे थे, ओके, फट भी रहे थे. और एक जगह पर
शब्दों को पढ़ते हुए ना बहुत ही अजीब, ह्यूमरस लगा, फनी लगा, जो कि अभी भी कैसे लग रहे थे, जैसे कि उसके उसके एक पर्दे में कोई गति नहीं हो रही है, इस तरह से लग रहा था। जब उन्होंने उन पेजेस को पलटा, टर्न किया, तो देखा कि वही शब्द उसमें अभी भी थे जो उन्होंने पहले पढ़े थे, जो उन्होंने पहले फर्स्ट टाइम पढ़े थे। ओके, तो टॉमी ने क्या कहा कि हम बर्बाद कर रहे हैं टाइम को, तो जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लेते हो तो तुम इसे फेंक देते हो, और मेरा जो गैस है, मेरा जो अनुमान है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर करोड़ों पुस्तक हैं, मिलियन, इट मीन्स करोड़ों पुस्तक हैं, बुक्स हैं, और ये पर्याप्त लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, तो मैं इसे दूर फेंक देना चाहूँगा। ठीक उसी समय ऐसा ही मेरे साथ है। किसने कहा? मार्गी ने, जो कि कितने ईयर्स की थी? 11 की। और उसने क्या कहा? उसने अपनी जो टैली बुक्स हैं वो भी उसने 9 देखी थी। टॉमी कितने ईयर्स का है? 13 का। उसने कहा कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ से मिली? तो टॉमी ने जवाब दिया, कहाँ से मिली? एटिक पर। फिर मार्गी ने पूछा कि ये किसके बारे में है? टॉमी ने जवाब दिया, स्कूल के बारे में। मार्गी बड़ी ही अजीब से तरीके से देख रही थी उसे, स्कॉर्नफुली। स्कूल के बारे में फेस मेकिंग करते हुए, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? इसमें क्या लिखा है स्कूल के बारे में? मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मार्गी ने कहा कि वो स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। स्कूल के बारे में लिखने से होता क्या है? उसने ये भी कहा कि जो मशीनी अध्यापक है, मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर, उसने कहा कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो जो ज्योग्राफी है उसमें टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था, और इसकी वजह से मेरी कंडीशन और भी बुरे से बुरी होती जा रही थी। और मेरी जो मदर हैं, उन्होंने वो बहुत दुखी हो गई, और उन्होंने बड़े दुख से सिर हिलाया, और उन्होंने मुझे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर को उन्होंने बुलाया, जो कि कैसा है दिखने में? एक छोटे कद का लाल चेहरे वाला व्यक्ति है, और उसके पास औजार और तारों का पूरा एक बक्सा है, और वो मार्गी की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने मार्गी को क्या दिया? एक एप्पल दिया। क्या दिया? एक एप्पल। तब उसने उस मैकेनिकल टीचर की तरफ देखा। मार्गी को अभी भी ये लग रहा था कि वो इसे फिर से जोड़ने का उन्हें पता होगा या नहीं होगा, लेकिन वो इसे ठीक करना जानते थे। जो काउंटी इंस्पेक्टर, और करीब 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने इसे फिर से ठीक कर दिया था। और ये बड़ा और काला और बड़े स्क्रीन वाला, जिस पर सभी पार्ट दिखाए जा रहे थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे, वह इतना बुरा नहीं था। मार्गी ने कहा इतना बुरा नहीं था। तो मार्गी मशीनी अध्यापक से उस दराज को भी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी। जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट के कागज़ रखने पड़ते थे। मार्गी केवल 6 ईयर्स की थी, और जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं, वो बहुत जल्दी से जो कैलकुलेटिंग है उसे कैलकुलेटिंग ऑफ मार्क्स की कर दिया करते थे। ओके, नाउ गोइंग टू रीड नेक्स्ट। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head.
He said to her mother, "It is not the little girl's fault." मिसेस जॉन्स, हु इज़ मिसेस जॉन्स? मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में बताया था कि मिसेस जॉन्स मार्गी की मदर हैं. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. I have showed it up to an average 10-year label. I have showed it up to an average 10-year label. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully. "Centuries ago." Margie was hurt. "Well, I do not know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." Now I am going to explain this in Hindi. तो जो इंस्पेक्टर है उसने अपना काम ख़त्म करने के बाद उसने स्माइल की, मार्गी का सर थपथपाया उसने थोड़ा सा, और मार्गी की माँ से कहा कि ये छोटी लड़की की का फॉल्ट नहीं है, और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी अपना वर्क करता है, और ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं. मैंने इसे 10 वर्ष, कितना, 10 years, 10 वर्ष के लेवल पर धीमा कर दिया है. वास्तव में उसकी कुल मिलाकर पढ़ाई में उन्नति बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. और उसने मार्गी के हेड को फिर से थपथपाया. मार्गी डिसअपॉइंटेड थी. उसे यही आशा थी कि अध्यापक पूर्ण रूप से इसे ले जाएंगे, क्योंकि एक बार पहले ऐसा ही हुआ था जब टॉमी के टीचर, हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम थी 1 month पहले, तो टॉमी के टीचर उसे ले गए थे. टॉमी की ओर उसने बहुत ही अच्छी नज़र से देखा, सुपीरियर, बहुत अच्छी नज़र से, क्योंकि ये जो है उनकी टाइप का स्कूल नहीं था और ओल्ड काइंड का स्कूल था. और उसने ये बड़े ही प्राउड से बताया कि शताब्दियों पहले, सेंचुरीज एगो, ऐसा था, ऐसा होगा. मार्गी को इससे बहुत बुरा लगा. उसने कहा कि ओके, मैं नहीं जानती कि पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे, और उसने बुक में पढ़ा था. तो फिर मार्गी ने कहा कि उनका भी एक अध्यापक होता था. नाउ आई एम टर्निंग द पेज. नाउ कम टू पेज नंबर 8. ओके. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man is not smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha
it means this is informal. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You do not know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way then. If you do not like it, you do not have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up. No yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more than with you after school, maybe? He said nonchalantly. Nonchalantly, what does it mean? Not showing much interest. Okay? He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on the waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, school का आंगन, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing so they could help one another and the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we added fractions, half and 1/4 or 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Now I am going to explain this in Hindi. तो मार्गी ने कहा कि हाँ एक मैन को टीचर होना चाहिए. तो टॉमी ने कहा कि हाँ वो इस सब के बारे में जानता है, बट उसने कहा कि बड़ी ही इग्नोरिंग मैनर में कहा. मार्गी इस सब के एक तरह के झगड़े के लिए तैयार नहीं थी. उसने कहा कि मैं अजनबी व्यक्ति से पढ़ना नहीं चाहूँगी. मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अजनबी व्यक्ति पढ़ाने के लिए आए. टॉमी चीखने के साथ साथ हंसा. मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती, अध्यापक छात्रों के घरों में नहीं रहा करते. उनके लिए विशेष इमारत हुआ करती है जो क्या कहलाती है? स्कूल. और जो सभी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते हैं. वहाँ जाकर वो एक ही चीज़ को, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा करते हैं क्योंकि वो सेम एज के होते हैं.
लेकिन उसकी मार्गी ने तभी कहा कि लेकिन मेरी मदर का कहना है कि अध्यापक को हर एक लड़के के दिमाग, हर बच्चे के, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसके दिमाग के अकॉर्डिंग उसे डिफरेंटली पढ़ाना होता है, क्योंकि हर एक बच्चे की जो तरीके होते हैं पढ़ने के वो अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही उस समय ऐसा भी नहीं किया जाता था स्कूल्स में। मार्गी ने तेज़ी से कहा तभी कि और तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, तो तुरंत टॉमी बोलता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि तुम इसे स्कूल के बाद में पढ़ सकते हो। मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं। अभी मिसेस जॉन्स ने कहा कि शायद टॉमी को पढ़ने का वक्त हो गया होगा। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या तुम इस बुक को स्कूल के बाद कुछ और देर पढ़ने दे सकते हो? तो हो सकता है उसने लापरवाही से ऐसा इसलिए कहा, सीटी बजाते हुए, पुरानी किताब को अपने बाजू के नीचे दबाते हुए, अपने हाथ के नीचे दबाते हुए वहाँ से चला गया। मार्गी स्कूल के कमरे में गई और उसने ये कमरा बिल्कुल अलग था, उसके जो स्लीपिंग रूम था उससे बिल्कुल अलग था, बेडरूम से। और मशीनी अध्यापक जो है वो शुरू हो चुका था, वो उसका इंतज़ार कर रहा था। ठीक उसी समय, ये शनिवार और संडे के दिन इसी समय शुरू होता था, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि छोटी लड़कियां नियमित समय पर ज़्यादा अच्छा सीख पाती हैं। मार्गी ने ऐसा एक आह के साथ किया। पर्दे पर रोशनी फैल गई और उसने कहा कि आज का अंक गणित का पाठ निम्न प्रकार से है, और कृपया कल का कार्य कर लें और उसे प्रॉपर स्लॉट में डाल दें। मार्गी को बड़ा अजीब लगा और उसने एक आह भरी। उसने आह के साथ ऐसा किया क्योंकि वो ये सोच रही थी, पुराने समय के स्कूल के बारे में सोच रही थी, जब उसके दादाजी छोटे थे, एक लड़के थे। पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल के आंगन में आते थे, गैदर हो जाया करते थे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, कक्षा के कमरे में साथ साथ बैठकर बातें भी किया करते थे, और दिन के अंत में एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे गृह कार्य को, होमवर्क को करने में, और इसके बाद वो बातें करते थे। और जो टीचर थे वो इस तरह के इंसान थे, वो मैकेनिकल टीचर नहीं थे, वो क्या थे, इंसान थे। और जो मशीनी अध्यापक है, मैकेनिकल टीचर, वो पर्दे पर अपना काम किया करते थे, और वो फ्रैक्शंस को ऐड किया करते थे, 1/2 एंड 1/4 उसे प्लस किया करते थे। मार्गी सोच रही थी कि प्राचीन काल में, पुराने समय में बच्चे इसे कितना प्यार करते होंगे, और उस आनंद का उस सबको वो बड़े ही मज़े से सोच रही थी कि उनने कितना मज़ा किया। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर ऑफ योर्स explanation in Hindi and reading in English is complete. Watch this video till the end. Pay proper attention while reading. Okay, thank you.